We thank you for your love. धन्यवाद करते हैं, We thank you for your grace. हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद We करते हैं। thank you for the wonderful purposes that you have for us. हम धन्यवाद करते हैं जो अद्भुत उद्देश्य आपने हमारे लिए रखे हैं। You are such a loving God. आप कितने प्रेमी परमेश्वर हैं। All the wonderful things that you do for us. जो भी अद्भुत बातें आप हमारे लिए करते हैं, This year, this exponential year, इस एक्सपोनेंशियल के साल में we thank you for all the amazing things that you have planned for us. हम उन सारी अद्भुत बातों के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार रखी है उसमें Every धन्यवाद देते हैं। day, every week, every month, हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने we expect to see the manifestation of all things that you have kept for us. और हम अपेक्षा करते हैं कि हम हर बातों का प्रकटीकरण देखें जो आपने हमारे लिए रखी है। And we are passionate for your house. और हम आपके घर के लिए जुनून से भरे हैं। We are passionate for your agenda. हम आपकी योजनाओं के लिए जुनून से भरे हैं। We are passionate for the nations of the world. हम इस विश्व भर के देशों के लिए जुनून से भरे हैं। And we are fulfilling our specific call that you have for us. और हम अपनी योजनाओं को जो बुलाहट आपने हमें रखी हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। Thank you for everyone that's come today. धन्यवाद हर उस व्यक्ति के लिए जो आज यहाँ आए हैं। Instructions will flow freely. आज यहाँ पे आसानी से निर्देशन बहेंगे। Keys will be released. कुंजियां रिहा होंगी। New doors are open. नए दरवाजे खुलेंगे। Thank you that grace-based prosperity visits their life. धन्यवाद कि अनुग्रह आधारित समृद्धि उनके जीवन में आ रही है। Thank you that revelation will flow freely. धन्यवाद कि प्रकाशन आसानी से बहे। Father, our ears are open. पिता हमारे कान खुले हैं। Let's pray in tongues, everyone, for a while. आइए हम सब अन्य भाषा में कुछ समय प्रार्थना करें। Ma anche sopra asce de grassa, ma anzi che le mazora pagra de palo de na manda da grassocra ategra, peru shatala mandereia socra ategre, palo de mandangra socra ategre. Alaba salamandalama reda la barabara de yashola palaba ma antaga segedege shagaraga radada re baraba segedede le enama zoro shatalaba peru shakarama re enta zole manta grase gedege shakadaga le edemin daga sikidede. Thank you, Lord. Yes, Sididamazoro shatalaba. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Please बैठ जाइए. Please be seated, everyone. सब बैठ जाएं। I just have one announcement. This week we'll be having 3-day fasting and prayer. और हमारी सिर्फ एक ही अपना अनाउंसमेंट है कि ये हफ्ते हमारा 3 दिन का उपवास प्रार्थना होगा। Tuesday, Wednesday and Thursday will be our fasting prayer. मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हमारा उपवास प्रार्थना होगा। And so after 6 o'clock you can eat. और 6 बजे के बाद आप खा सकते हैं। So we are going to pray Tuesday, Wednesday and Thursday, 3 days monthly fasting that we do. We are going to do it next week. और जो मासिक हम उपवास प्रार्थना जो हम करते हैं वो हम अगले हफ्ते करेंगे। 3 दिन करेंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। So it will be great if you participate in the fasting prayer. तो ये बहुत अद्भुत बात होगी अगर आप भी उस उपवास प्रार्थना में हमारे साथ सहभागी हो। And it's good for your health also. और ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। Also, everyone who was praying for the conference, I want to thank all of you. और हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना किया। Because it was a very wonderful and amazing conference by the grace of God. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत ही अद्भुत कॉन्फ्रेंस रहा वो।
Only the ones who came there can testify very nicely. सिर्फ जो वहाँ पे मौजूद थे वो इस बात की अच्छे से गवाही दे सकते हैं। So we saw the grace of God, the hand of God in that meetings. उस मीटिंग में हमने परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। And most of the feedback that I received, this was their statement: I am trusting God. I am trusting God. So Jesus was lifted up. That's our ultimate agenda. और जो फीडबैक मुझे मिला बहुत सारे पास्टर्स से वो ये था कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह उठाए गए। Where pastors would look at many different places, now they are all looking at Jesus Christ. बहुत जहाँ पास्टर बहुत सारी जगहों पर देख रहे थे, अब वो सब यीशु की ओर देख रहे हैं। And so it's going to be great. और ये बहुत अद्भुत होगा। And so today my session is Understanding Epignosis Part 3. और मेरा आज का सेशन है कि एपिग्नोसिस की समझ भाग 3। Understanding Epignosis Part 3. एपिग्नोसिस की समझ भाग 3। When we were praying in the Spirit, as I told you that we were supposed to go to Gadchiroli, that was where the meeting was supposed to be. और मैंने आपसे कहा था जब हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे हमें गढ़चिरौली जाना था, वहां पे हमारी मीटिंग होने वाली थी। But as we are praying in the Spirit, it can apply to any profession, not just for ministers. Maybe you are in the corporate world, this can apply for you also. और ये किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवकायत तक सीमित है। ये अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो ये वहां भी लागू हो सकता है। Say you have to make some decisions, just pray in tongues. मानिए आपको कुछ निर्णयों को लेना है, आप सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करें। And as you minister to the Lord and pray in tongues, you will become sensitive where the wind is blowing. You will know it. और अगर आप परमेश्वर की उपासना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, तो आप जो हवा का बहाव है आत्मा का, आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। And suddenly I sensed that the wind is blowing towards Nagpur. और अचानक मैंने महसूस किया कि जो हवाएं हैं वो नागपुर की ओर बह रही हैं। So you could be in the corporate world, or you could be in business, or you could be a housewife. You have to be sensitive where the wind is blowing. और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, या आपका खुद का व्यापार हो, या आप एक सिर्फ हाउस वाइफ क्यों ना हो, तो आपको उस हवा के प्रति आपको बहुत संवेदनशील होना है। Paul was about to preach the gospel in Bithynia. पौलुस बेतनिया में प्रचार करने वाला था। And suddenly the Holy Spirit said, not Bithynia. और अचानक पवित्र आत्मा ने कहा कि बेतनिया नहीं। He said, turn from here. उसने कहा कि तुम यहां से मुड़ो, It's not Bithynia's time. ये बेतनिया का अब समय नहीं। So he turned, and when he turned, the Lord told him, is Macedonia. You have to go to Macedonia. और जब वो मुड़ा तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हें मकदूनिया जाना है। So timing is very important. तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। Now you could rebuke the Holy Spirit and said, I bind you. Yeshu said, I have to preach the gospel. और आप ऐसा पवित्र आत्मा को बोल सकते कि मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता हूं, मुझे प्रचार करना है। You have to be careful with the timing. तो आपको समयों के साथ बहुत संवेदनशील होना है। Because the Holy Spirit is a great strategist. क्योंकि पवित्र आत्मा एक महान रणनीतिकार है। He has a plan. उसके पास एक खुद की He योजना has है, strategy. उसके पास रणनीति है। And we have to be very sensitive as to what the strategy is. Otherwise, anything good you feel like you'll just do it without being sensitive to the strategy and the timing of the Holy Spirit. और जो भी रणनीतियां वो हमें बताता है, हमें उसके प्रति संवेदनशील होना है। नहीं तो हम जो भी हमें अच्छा दिखता है हम उसके पीछे जाएंगे और हम उन रणनीतियों का जो उसने रखी है उनको नजरअंदाज कर देंगे। So we were able to move with the wind of the Spirit. तो हम आत्मा की हवा के साथ चल रहे थे। And so the impact becomes perpetual and exponential. और जो प्रभाव जो वहां था वो एक्सपोनेंशियल था और वो लंबे समय तक था। And we will go to Gadchiroli also और हम गढ़चिरौली भी जाएंगे at the right time. सही समय आने पर। Okay, so our topic is understanding
Epignosis Part 3. और हमारा विषय है एपिग्नोसिस की समझ भाग 3। Whenever you're praying, whenever you're reading the word, please show a demand. Lord, I want the epignosis of Jesus Christ. Make a demand. जब भी आप प्रार्थना करते हैं या आप वचन को पढ़ते हैं तो आप एक मांग को उत्पन्न करें कि प्रभु मैं यीशु के एपिग्नोसिस को जानना चाहता हूँ। Every time you open the Bible, you tell the Holy Spirit, I want to know Jesus more. जब भी आपने बाइबल को खोलते हैं तो आप पवित्र आत्मा से ये मांग करें कि मैं यीशु को और अधिक जानना चाहता हूँ। A simple prayer. एक साधारण प्रार्थना। Or when you are coming to church, या आप जब कलीसिया से आते हैं you put it in front of the Holy Spirit, I want to know Jesus more. आप पवित्र आत्मा के सामने रखते हैं कि मुझे यीशु मसीह को अधिक जानना है। When the vessel got over, the oil stopped. जब बर्तन समाप्त हुए तब वो तेल बहना बंद हो That गया। means where there is no demand, there will never be supply. इसका अर्थ है जहां भी मांग नहीं होगी वहां पे आपूर्ति भी नहीं होगी। There was this widow lady. Her husband had taken loan. एक विधवा स्त्री थी और उनके पति ने कर्जा लिया था The husband died. और जो पति थे उनका मृत्यु हुआ। They have 2 boys. अभी उनके पास 2 बच्चे हैं। Now the creditors have come to take the boys as slaves. अभी जो कर्जा लेने वाले हैं वो उन 2 लड़कों को गुलाम की तरह लेने आए हैं। So notice the widow lady, she comes to a man of God. तो ये जो विधवा स्त्री है वो परमेश्वर के जन के पास आती है। How interesting. कितना दिलचस्प है ये। पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाना चाहिए. Amen. It's very important because what you need at that moment is not financial assistance. What you need is grace. क्योंकि आपको उस स्थिति में आपको आर्थिक मदद की जरूरत नहीं पर आपको उस समय अनुग्रह की मदद चाहिए। So she comes to a man of God. तो वो परमेश्वर के जन के पास आती है। And the man of God says, what do you have in your house? तो उस परमेश्वर का जन बोलता है कि तुम्हारे घर पर क्या है? She says, I have little oil. वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा तेल है। He said, okay, do one thing, go to your neighbors and collect as many vessels as you can. और वो बोलता है ठीक है तुम अपने पड़ोसियों के पास जाओ और जितना हो सके उतने सारे बर्तन ले आओ। And then he said, don't collect a few. और उसने कहा थोड़े नहीं बहुत लेकर आओ। So she took her boys and she said, collect the vessels. तो उसने अपने लड़कों को बोला कि जाओ और सारे बर्तनों को लेकर आओ। And she started pouring the little oil on the vessels. और वो उस तेल को उन बर्तनों पर डालने लगी। And as she kept pouring it, और जैसे वो डालने लगी kept pouring it, वो डालने लगी she told her son, give me one more vessel. और उसने अपने बेटे को कहा कि मुझे और एक बर्तन दो। And the son said, all the vessels are over. और उसके लड़के ने कहा कि सारे बर्तन जो है वो खत्म हो गए। It's as if the oil heard it. और ये ऐसा है मानो कि उस तेल ने इस बात को सुना। And when the oil heard that there is nowhere to flow, it stopped. और जब तेल को मालूम पड़ा कि आप बहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो रुक गया। Where there is no demand, there is no supply. जहां पे कोई मांग नहीं है वहां पे कोई आपूर्ति नहीं है। And so when you read the word demand to know Jesus more, तो जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप ऐसी मांग करिए कि मुझे यीशु को और जानना है। when you come on Sunday, demand to know Jesus more. जब आप रविवार को आते हैं आप मांग करिए कि आपको यीशु को और जानना है। All the vessels are full. तो सारे के सारे बर्तन भर गए। She doesn't even know what to do. उसे पता भी नहीं कि क्या करना है। Poverty is bad, man. गरीबी बहुत बुरी है। Poverty is really bad. It affected his mind. She sees oil and she's thinking, क्या करेंगे तेल का? कि वो उसका अपनी मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। वो तेल को देख रही है और सोच रही है कि तेल से हम क्या करेंगे। Poverty is bad. गरीबी बहुत गंदी है। So she sees the oil. तो उस तेल को देखती है। She doesn't even know what to do. उसको पता भी नहीं क्या करना है। So she goes to the man of God. तो परमेश्वर के जन के पास जाती है। And the man of God says, do one thing, sell the oil. तो परमेश्वर का जन कहता है एक काम करो तुम तेल बेच दो। Pay your loan. और अपना कर्ज भर दो। Live on the rest. और जो बचा है उसमें तुम विश्राम से जियो। अभी आपसे अगर पूछूं, जवाब मत दीजिए। ये समृद्धि कैसे आई? अनुग्रह से आई। Amen. That is where we are. It's going to come by grace. और हम यहीं पर है। यहाँ पर वो अनुग्रह से आएगा। अगर उसे पता होता कि बाकी में भी जीना है तो दूसरे गांव में भी जाके लेके आती वो एरिया में जितने गांव हैं
सब गांव में लेके बर्तन, क्योंकि बाकी में रहना है तो 4-5 साल के लिए रहेंगे. She didn't know, because you have to trust God. आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है. So anytime your loan, hear this, ये बात सुनिए आप, your loan might be a big number. It's not big for God. आपका कर्जा की रकम बहुत बड़ी हो सकती है पर वो परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है. Demand that this year you're coming out of it. और आप मांग करिए कि आप इस साल उससे बाहर आएंगे. Say this with me. I am debt free. I am debt free. बोलिए मैं कर्ज मुक्त हूँ. मैं कर्ज मुक्त हूँ. वापस बोलिए I am debt free. I am debt free. Say it again. I am debt free. I am debt free. Yeah, God is going to help us. परमेश्वर हमारी मदद करेगा. And now, so demand, every time you read your Bible, demand to know Jesus more. Make a demand. Lord, Holy Spirit, I want to know Jesus more. और जब भी आप बाइबल को पढ़े आप इस मांग को रखें कि पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि मैं इसके द्वारा यीशु को और अधिक जानूं. He is in Proverbs, he is in Song of Songs, he is in Genesis, he is in Revelation. He is everywhere. Demand to know Jesus more. Demand it. वो नीति वचन में, वो सुलेमान के गीतों में है, वो उत्पत्ति में है, वो प्रकाशित वाक्य में. पवित्र आत्मा से मांग करिए कि आप उसे और अधिक जाने. Next line. अगली स्लाइड. Epignosis means knowing something so well that it changes you. एपिग्नोसिस का अर्थ है किसी बात को इतनी गहराई से जानना कि वो आपको बदल देता है. Yes, it's not superficial knowledge. ये दिखावटी ज्ञान नहीं. It's knowledge to a level where it transforms you. ये ऐसे स्तर का ज्ञान है कि वो आप ही को बदल देता है. Epignosis means knowing something so well that it changes how you think, live and respond. एपिग्नोसिस का अर्थ है किसी बात को इतनी गहराई से जानना कि वो आपकी सोच, आपके जीवन और आपकी प्रतिक्रिया को बदल देता है. And you cannot know it unless the Holy Spirit reveals it to you. और आप इसे तब तक जान नहीं सकते जब तक पवित्र आत्मा आपको प्रकट नहीं करता. Because it's a spiritual thing. It's not an intellectual thing. क्योंकि ये एक आत्मिक चीज है, ये आपकी बौद्धिक ज्ञान की चीज नहीं है. You cannot know God unless God reveals himself to you. आप परमेश्वर को तब तक नहीं जान सकते जब तक परमेश्वर अपने आप को खुद प्रकट नहीं करता. So I demand that the Holy Spirit reveals Jesus to me. तो मैं ये मांग करता हूं कि पवित्र आत्मा आप मुझे यीशु मसीह को दिखाओ. Till it begins to affect the way I talk. तब तक कि वो मेरे बोली के ऊपर प्रभाव डाले. Next line. अगला स्लाइड. The epignosis of Jesus is knowing Jesus so well, not superficially, but knowing him so well through revelation of the Holy Spirit and experience that his life shapes who you are, what you believe and how you live every day. यीशु की एपिग्नोसिस का अर्थ है कि यीशु को इतनी गहराई से जानना, दिखावटी ज्ञान नहीं, उसको गहराई से उसका ज्ञान प्राप्त करना और अनुभव का करना कि उनका जीवन पहचान आपके विश्वास और आपके दैनिक जीवन को दिशा दे. I am changed मैं बदल गया हूं because his epignosis has changed my life. क्योंकि उसके एपिग्नोसिस ने मेरे जीवन को बदला है. The more you know him, the more you're transformed. जितना आप उसको जानेंगे उतने आप खुद बदल जाएंगे. Look at the Apostle Paul. हम प्रेरित पौलुस को देखेंगे. There were certain things he was very prideful about till he met Jesus. कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा घमंडी था जब तक वो यीशु को ना मिला. This is my name. ये मेरा नाम है. It's my family name. ये मेरे परिवार का नाम है. These are my accomplishments. ये मेरे उपलब्धियां है. And many things he was boasting about. और बहुत सारी चीजों के ऊपर वो घमंड करता था. This is my tribe. ये मेरा गोत्र है. This is my family. ये मेरा परिवार है. This is my accomplishment. ये मेरी उपलब्धियां है. Many things he was boasting about. बहुत चीजों पे वो घमंड करता था. Till he met Jesus. तब तक वो यीशु को ना मिला. For us also we boast about many things. और हम भी बहुत सारी चीजों के ऊपर घमंड करते थे. Till we meet him. जब तक हम उसे मिले. And when we meet him, we realize that what we were boasting about is actually dung. और जब हम उससे मिले तो हमने जाना कि जो इसके बारे में हम घमंड करते वो सब गोबर है. Now look at
It's a biblical verse. Let's see Philippians. ये एक वचन है, फिलिपियों में देखेंगे, That I might also have confidence in the flesh, if any man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखना का विचार है तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। He's talking about his boasting about certain things तो वो अपनी कुछ चीजों के ऊपर घमंड करने के विषय में बोल रहा है, till he meets Jesus. तब तक जब वो यीशु को ना मिला। You know, something happens when you meet him. कुछ तो होता है जब आप उससे मिलते हैं, He just changes you. वो सिर्फ आपको बदल देता है। You are no more boastful about those things anymore. आप उन चीजों के बारे में अभी उतने घमंडी नहीं हैं। He changes your ambition. वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बदलता है, Changes your pursuit. वो आपके अनुसरण को बदलता है। Verse 5. वचन 5। Now he talks about what he once boasted about. अभी वो उन चीजों के बारे में बात करे जिनके विषय में वो पहले कभी घमंड करता था। He was very prideful about these things. वो इन चीजों के विषय में बहुत ज्यादा घमंडी था। He considered himself superior than others because of these things. वो अपने आप को दूसरों से महान सोचता था इन चीजों के विषय में। Circumcised the 8th day 8वें दिन मेरा खतना हुआ, of the stock of Israel, इज़राइल के वंश का, of the tribe of Benjamin, बिन्यामीन के गोत्र का, and Hebrew of the Hebrews, इब्रानियों का इब्रानी, as touching the law or education of Pharisee, व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो फरीसी हूँ, all other little people. और बाकी सब छोटे लोग हैं। Indirectly he's saying that. वो यही कह रहा है, He said, I'm a Pharisee, वो कहता है मैं फरीसी हूँ, highly educated, बहुत उच्च शिक्षा वाला हूँ, not like ordinary people. साधारण लोगों की तरह नहीं। I have a family name. मेरे पास परिवार का नाम भी है, I'm not some from common lineage. I'm of the tribe of Benjamin. और मैं किसी ऐसे वैसे गोत्र का नहीं, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। वो इतना भी बोल रहा है कि मैं सिर्फ इब्रानी नहीं हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। क्या घमंड है, सोचिए। What pride. He said, I'm not just a Hebrew. Others are Hebrew. मैं हिब्रू का हिब्रू। वो इतना घमंडी क्यों कहता है कि मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ। Praise God. Now Jesus is about to change his screw. अभी यीशु मसीह उसका स्क्रू टाइट करने वाला है। Okay, verse 6. वचन 6, Concerning zeal, persecuting the church. उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो कलीसिया का सताने वाला, Touching the righteousness which is in the law, I am blameless. और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष था। He just listed certain things that he is prideful about. उसने अभी उन चीजों का बताया जिसके बारे में वो बहुत घमंडी है। One day, एक दिन on the road to Damascus, दमिश्क के रास्ते पर because of the intercession of certain people. उन कुछ लोगों की मध्यस्थता की वजह से, See, we know that Jesus met Saul on the way to Damascus, but we don't know who are those old people and from which village they were interceding for Saul. हम जानते हैं कि यीशु मसीह शाऊल को दमिश्क के रास्ते पर मिले, पर हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो अलग किसी गांव में रहकर यीशु उसके लिए मध्यस्थता कर रहे थे। Only heaven will tell us who those powerful intercessors are. सिर्फ स्वर्ग ही हमें बता सकता है कि वो कौन सामर्थ्यशाली मध्यस्थता One है। of the most powerful ministries is the ministry of intercession. सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सामर्थ्यशाली सेवकाई है वो मध्यस्थता की सेवकाई है। There is no ministry more powerful than that. उससे सामर्थ्य सेवकाई कोई है ही नहीं। Amen. Amen. Okay, verse 7, one day he meets Jesus. But what things were gained to me, what things I was boastful about, now I count it as loss for Christ. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिन बातों पर मुझे घमंड था, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। Because of Christ. मसीह के कारण। He said, one encounter with Jesus and whatever was profitable, now it's become a loss. जो भी यीशु मसीह, जो एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ और जो कुछ भी मेरे लिए लाभदायक था, अब वो सब मेरे लिए हानि बन गया। We must not make what is not important very important in our lives. हमें अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे हमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं बनाना। Verse 8. वचन 8, इसको देखिए. Yes, doubtless I count all things, born of Hebrew of Hebrews,
Pharisee, all things I count it as loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को, इब्रानियों का इब्रानी, फरीसी, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। So even today people boast about so many things. आज भी लोग बहुत सारे चीज के बारे में घमंड करते हैं। Their family name, उनका घर का नाम, their tribe name, उनका गोत्र का नाम, their accomplishments, उनकी उपलब्धियां and so many other things. या कोई और दूसरी चीजें। But then he says he met Jesus, फिर वो कहता है मैं यीशु को मिला, he encountered Jesus, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, and when he encountered Jesus, whatever was gain for him, he counted it as loss because Jesus changed him completely. और जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तब जो भी उसके लाभदायक था उसने उससे हानि समझ लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे बदल दिया। In simple words, साधारण शब्दों में Paul says he took my focus away from the temporary and he made it come on the eternal. उसने साधारण शब्दों में ये कहा कि उसने मेरा ध्यान अस्थाई चीजों से लेकर स्थायी चीजों पर रख दिया। He took my focus away from what has little value to something that has eternal value. उसने मेरा ध्यान ऐसी चीज के ऊपर जिसका बहुत कम कीमत है, उसने मेरे ध्यान उन चीजों पर रखा जिनका अनंत काल बहुमूल्य है। Even if today you have certain things like maybe Paul, but as you pursue Jesus, he will do something in you. और शायद से आप में भी कुछ पौलुस की तरह कुछ चीजें होंगे, पर जैसे आप यीशु का अनुसरण करेंगे वो आपको बदल देगा। He will give you purpose. वो आपको उद्देश्य देगा। He will give you a greater life. वो आपको एक महान जीवन देगा And will help you enjoy that life. और वो आपकी मदद करेगा कि आप उस जीवन का आनंद ले। So one of the things about epignosis, again I want to share with you, one of the results of epignosis is this slide. Yeah. और एपिग्नोसिस का एक परिणाम ये स्लाइड है। Now I want you to understand this slide. और मैं चाहता हूं कि आप इस स्लाइड को समझें। In Christ, you have escaped and have dominion over the corruption and pollution of this world. मसीह में आप इस संसार की सड़ाहट और अशुद्धता से छुटकारा पा चुके हैं और उस पर प्रभुता रखते हैं। Now notice the tense, brothers and sisters. और आप उस काल को देखिए भाई और बहनों, It's not that you are going to escape. ये ऐसा नहीं है कि आप छुटकारा पाने वाले हैं। It's not that you're going to have dominion. ये ऐसा नहीं कि आप प्रभुता पाने वाले हैं। Anyone, any believer who goes for curse breaking sessions, why do they go? जो भी विश्वासी जो पाप तोड़ने श्राप तोड़ने वाले सेशन में जाता है वो क्यों जाता है? The reason is because of their feelings. एक पहला कारण है उनकी भावनाएं। It's because of what they feel. उसके कारण है कि वो जो क्या महसूस करते हैं। Because of what they feel, that's why they think they are cursed. क्योंकि जो चीजों को महसूस करते हैं उनकी वजह से वो सोचते हैं कि वो श्रापित है। They don't live by the word, they live by their feelings. वो वचन के अनुसार नहीं, वो अपनी भावनाओं के अनुसार जीते हैं। And that's a problem. और ये समस्या है Because they want quick solution. क्योंकि उन्हें तुरंत आने वाले परिणाम चाहिए। They don't want to sit in the word, get a revelation, and that revelation setting them free. They don't want to do it. They want to get it quickly. वो ये नहीं चाहते कि वो वचन पर बैठे, वो उस प्रकाशन को प्राप्त करे और प्रकाशन उन्हें छुटकारा दे, वो ये नहीं चाहते। In Christ, now notice the tense, in Christ, you have already escaped. You already have dominion over the corruption and pollution of this world. मसीह में आप इस काल को समझिए, मसीह में आप इस संसार की सड़ाहट और अशुद्धता से छुटकारा पा चुके हैं और उस पर प्रभुता रखते हैं। Now, corruption and pollution refers to moral corruption and moral pollution. और जो ये सड़ाहट और जो अशुद्धता है, ये नैतिक सड़ाहट और नैतिक अशुद्धता को दिखाता है। You know, the Pharisees were very corrupt, morally corrupt. और जो फरीसी थे वो नैतिक रूप से बहुत ज्यादा भ्रष्ट थे। They will twist the scriptures to make money out of people.
people. They were morally corrupt and polluted. वो नैतिक रूप से अशुद्ध और भ्रष्ट लोग थे। वो वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों से पैसे निकालते थे। Whether you take the newspaper, it's dirty. जब आप न्यूज़पेपर ले तो खराब होता है। There is filth everywhere. हर जगह गंदगी है। You talk about the movies, there is filth. It's filthy everywhere. आप पिक्चरों के बारे में कहे तो वो भी पूरे गंदगी से भरे हैं। I was in the morning intercessory prayer. I was telling the people about smoking. मैं हमारी मॉर्निंग इंटरसेसरी प्रेयर में मैं लोगों को धूम्रपान के बारे में बता रहा था। अभी आप सोचेंगे सुबह की प्रार्थना में स्मोकिंग का क्या चल I share a lot of things in morning prayer. Only those who come, they will know. मैं सुबह की प्रार्थना में बहुत सारी चीजों को बांटता हूँ, जो आते हैं वही जानते होंगे। Why is it that in every movie you see a hero smoking? ऐसा क्यों है कि हर एक पिक्चर में आप हीरो को धूम्रपान करते हुए देखें? Because the sponsors are tobacco companies. क्योंकि जो उसके प्रयोजन करता है वो ये तंबाकू वाले कंपनी है। So if the hero smokes, तो ये जो हीरो है वो धूम्रपान करता है। the younger generation will see that as a style. और जो युवा पीढ़ी है वो उसे एक स्टाइल की तरह दिखेगी And they will buy it. और वो भी खरीदेंगी। And money goes to the tobacco companies. और ये जो पैसा है वो टोबैको वाली कंपनी के पास जाता है। They will put it again and they'll have the heroes to do it. और वो फिर रखेंगे और फिर वो हीरो करेंगे। And that's why they smoke. और इसीलिए वो धूम्रपान करते हैं। Because if they don't smoke, पैसा नहीं देंगे आपको. अगर आप धूम्रपान नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं देंगे। If you want, because see, people are so much after money. If they can get money, they'll do anything. देखिए लोग बहुत ज्यादा पैसों के पीछे, पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। So it's these companies who are sponsoring the movies. तो ये कंपनियां हैं कुछ जो इन पिक्चरों को स्पॉन्सर करती है। And they will have to use their product और उन्हें उनके चीजों का इस्तेमाल करना so होगा that the people will buy it. ताकि लोग उसे खरीदे And they'll have more money. और उनके पास और पैसा हो And it will be shown more. और वो और दिखाया जाएगा। But some people they think it is style. It's not style. उससे गहरा है बात. और कुछ लोगों को लगता है वो सिर्फ स्टाइल का बात है। नहीं, स्टाइल का बात नहीं, उससे कई अधिक गहरा है ये बात। So there is lot of dirt. तो बहुत ज्यादा गंदगी है। Even in companies, कंपनियों में भी, even in churches, कलीसियाओं में भी there's lot of dirt. बहुत ज्यादा गंदगी है। Lot of moral corruption. बहुत ज्यादा नैतिक भ्रष्टाचार है। There's lot of abuse. बहुत गाली गलौज है। The thinking is very wicked. उनकी सोच बड़ा खराब है। So whether it's in office, whether it's in church, whether it's in societies, lot of moral pollution and corruption is in the world today where we live. बड़े हमारे ऑफिस में हो, कलीसिया में, हमारे समाज में हो, इस पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा नैतिक सड़ाहट और अशुद्धता है। Even in your companies, you know it. If you're working in a company, you know it. अगर आप कंपनी में काम करते हैं आप जानते हैं कंपनी में भी होता है। What used to be what one person would never even mention, today it's very common. और जो पहले होता था और जिस बात के बारे में कोई कभी बात भी नहीं करता, आज वो बात बड़ी साधारण है। In fact, it's a common thing. वो बहुत साधारण है। It is so common that when we say no, they are surprised. वो इतना साधारण हो चुका है कि अगर हम नहीं कहे तो वो चौंक जाते हैं। So there is a lot of moral corruption and pollution in this world. तो इस संसार में बहुत ज्यादा नैतिक सड़ाहट और नैतिक अशुद्धता है। In the way they behave, जिस तरह से वो बर्ताव in the करते way हैं, they talk, जिस तरह से वो बात करते in the हैं, way they show things, जिस तरह से वो चीजों को दिखाते हैं, in what is being portrayed just to make money. और क्या दिखाते हैं सिर्फ पैसों कमाने के लिए। And so we have to be smart. Otherwise, we should not be flown into something just so some people can make money out of us. और हमें बहुत बुद्धिमान होना है और हमें उन बातों में बहकर नहीं जाना जिसके द्वारा लोग हमारे द्वारा पैसा कमाएं। So something happened in Christ. तो कुछ तो मसीह में हुआ, Something happened. कुछ तो हुआ। When you came in Christ, you already escaped the pollution and corruption of this world. You already did. जब आप मसीह में आए तब आप इस संसार की सड़ाहट और अशुद्धता से छुटकारा पा चुके हैं। Amen. आमीन। You already escaped. आप छुटकारा पा चुके हैं। Oh Lord, escape me. पिता उन्हें छुटकारा दे। प्रभु दे दे, अभी इतना टाइम हो गया, प्रभु दे। और प्रभु बोल रहा है दे दिया।
You know why they pray like this is because of feelings. आपको पता है ऐसा क्यों वो प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उनकी भावनाओं की वजह से, It's because of उनकी feelings. भावनाओं की वजह से। Now, the moment you came in Christ, you have escaped their grip. You have escaped their grip. You have escaped their catch. You have already escaped it. और जब आप मसीह में आए तो उनकी पकड़ आपके ऊपर छूट गई। That's why God can send you anywhere, इसलिए प्रभु आपको कहीं भी भेज सकता है, any country. किसी भी देश में। He can send you in any company. वो आपको किसी भी कंपनी में भेज सकता है, Because he sees you as already escaped and having dominion over the moral corruption of this world. क्योंकि वो आपको इस तरह से देखता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास प्रभुता है और इस संसार की नैतिक सड़ाहट से पहले से ही छुटकारा पा चुका है। Some behavior when you see in certain corporates world, you feel like asking them, don't you fear God? कुछ तरह के बर्ताव जो लोग करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपको लगता है कि उनसे हम पूछे कि क्या आपको परमेश्वर का भय नहीं? Don't you know that there is a judge and there is a day of accounting? क्या आपको नहीं पता कि आपको एक दिन आपका भुगतान देना पड़ेगा और एक दिन आपका न्याय होगा? Don't you know that there is a day of judgment? The way you're living like, it seems like there is no judge. आप जिस तरह से जी रहे हैं ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर न्याय करने के लिए है ही नहीं। So in Christ you have already escaped and you already have dominion over the corruption and pollution of this world. तो मसीह में आपने पहले ही से छुटकारा प्राप्त किया इस संसार की सड़ाहट और अशुद्धता पर। Now notice, I won't take much time. अगर मेरे पास ये है तो मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर नहीं है इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा। क्यों प्रार्थना किया जाता है? क्यों पाने के लिए प्रार्थना किया जाता है? क्योंकि वो विश्वासी को लगता है कि उसके पास नहीं है, और जब आपके पास नहीं है फिर आप प्रार्थना करते हैं उसे पाने के लिए, लेकिन अगर है तो फिर आप प्रार्थना नहीं करेंगे पाने के लिए। Amen. So you got to know what you have in Christ. आपको जानना जरूरी है कि आपके पास मसीह में क्या है, And you got to see yourself the right way. और आपको अपने आप को सही तरीके से देखना है। I see myself above the moral corruption of this world. I'm already above it because I'm in Christ. मैं अपने आप को इस संसार के सड़ाहट के ऊपर देखता हूं क्योंकि मैं मसीह में हूं। Or else they will tell you it happens with everybody. नहीं तो आपको बोलेंगे ये सबके साथ होता है, Everybody has bad habits. सबके पास बुरी आदतें हैं। Everybody in private struggles with sin. It happens with everybody. It's nothing new. हर एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में पाप के साथ संघर्ष करता है, ये नया नहीं है। Everybody has something. सबके पास कुछ ना कुछ तो है। Now that teaching is out of experience. It's not out of the Bible. तो ये जो शिक्षाएं है ये अनुभव के द्वारा आई है, ये बाइबल के आधारित नहीं। In Christ, मसीह में you're already above it. आप पहले ही उसके ऊपर है। सब बोलिए मैं पहले से ऊपर हूं। मैं पहले से ऊपर हूँ। Now it's important to realize these things. Otherwise, you all your life you will fast and pray, fast and pray, fast and pray, fast and pray to get somewhere where you're already born. और आपको ये बहुत अनिवार्य है कि आप इन चीजों को जाने, वरना आप पूरे जीवन भर आप उपवास प्रार्थना करते रहेंगे ऐसी जगह पर पहुंचने पर जहां पे आपका जन्म हुआ है। Now again, फिर in Christ you have already escaped. मसीह में आपने इस संसार पर सड़ाहट और अशुद्धता से छुटकारा पाया है। You already have dominion over the moral corruption and the moral pollution of this world. आपके पास पहले से ही इस संसार के नैतिक सड़ाहट और नैतिक अशुद्धता पर प्रभुत्व है। Next slide. अगला स्लाइड। इसको देखिए। Through the epignosis of Jesus Christ, it manifests. यीशु मसीह की एपिग्नोसिस के द्वारा वो प्रकट होता है। Yes, good. Through the epignosis of, I already have it, and now through pursuing Jesus, it will come out of me. मेरे पास वो पहले से ही है, अब वो यीशु मसीह के अनुसरण में वो प्रकट होगा। That's how it works. ऐसे ही वो काम करता है। You're not trying to see. If you are stuck, like somebody says, this is lot of immorality here, I will change the location. कोई कहता है कि यहाँ पे बहुत अनैतिकता है, मैं जगह बदलूंगा। अनैतिकता कहां पर नहीं है? कौन से देश
पर नहीं है. Every country has it. Wherever there are humans, there is immorality. जहाँ वो हर एक देश में जहाँ कहीं भी लोग हैं, जहाँ कहीं भी मनुष्य है, वहां पे अनैतिकता है. Sin is a universal problem. जो पाप है वो पूरे विश्व भर की समस्या है. America has the same sin problem that India has. अमेरिका में भी वही पाप की समस्या है जो भारत में है. So it's not about location. तो ये जगह के बारे में नहीं है. It's not about location. ये जगह के बारे में नहीं है. It's about what you already have. ये उसके बारे में जो आपके पास पहले से ही है. See, that's why God can send you anywhere. इसीलिए परमेश्वर आपको कहीं भी भेज सकता God said, है. I want you to go there. परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ. Hallelujah. Because of what we have. क्योंकि जो हमारे पास पहले से है. Some people have justified कुछ लोगों ने इस बात को सही ठहराया है because there is lot of dirty things in my office. क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा गंदी चीजें हैं. My friends are very dirty friends. मेरे दोस्त बड़े गंदे हैं. And because that's why I also very dirty. इसीलिए मैं भी बड़ा गंदा हूँ. But Sunday I wear white shirt, you know. फिर मैं रविवार को अच्छा सफेद कपड़ा पहनता हूँ. When I go back home, I remove the white shirt. जब मैं घर आता तो मैं वो सफेद कपड़े को निकाल देता हूँ. No, you see, don't justify sinful behavior. नहीं, आप आपके पाप में स्वभाव को आप सही मत ठहराइए. You don't live godly because of friends. You live godly because of Christ in you. आप ईश्वरीय जीवन आपके दोस्तों के लिए नहीं जीते. आप ईश्वरीय जीवन जीते क्योंकि मसीह आपके अंदर है. It's from here. Godliness comes from within you. वो भक्ति, वो अच्छा ऐश्वर्य जीवन वो आपके अंदर से आता है. You can go wherever God sends you and you can manifest the godliness of Jesus Christ. तो परमेश्वर जहां चाहे वो आपको भेज सकता है और वहां आप यीशु का ईश्वरीय स्वभाव को दिखा सकते हैं. Especially in your private life. खास करके अपने निजी जीवन में. Because who cares who claps for you? इससे क्या फर्क पड़ता है कौन आपके लिए तालियां बजाता है. There was someone called Paul. कोई था, उसका नाम पौलुस था. He went to Malta. वो माल्टा देश में गया He was putting the wood on fire. और वो आग में लकड़ी को डाल रहा था. Suddenly a snake came out. फिर एक सांप बाहर आया. It bit him. उस सांप ने से काट लिया. So everybody said, "पक्का हत्यारा है ये." तो लोगों ने कहा ये हत्यारा, इसीलिए इसको काटा. So Paul, he took the snake and put it back. तो उस पौलुस ने सांप को लिया और उसमें आग में फेंक दिया. और सब रुके, मरेगा अभी, मरेगा. They are smiling at him. अंदर चल रहा है, मरेगा ये अभी. वो उसको देख के मुस्कुरा रहे पर वो अंदर सोच रहे कि अभी मरेगा. आधा घंटा हो गया, नहीं मर रहा है. 1 घंटा हुआ, नहीं मर रहा है. 2 घंटा. फिर उन्होंने बोला ये तो परमेश्वर है भाई. इसको चाय पिला. You see, people's opinion, लोगों की राय. so many things. So we don't privately, why we live holy? Not because 2 people will clap for you. What will they clap do for you? नैतिक हम लोग निजी जीवन में हम पवित्र क्यों जीते? ये लोगों की तालियों के लिए नहीं, उनके तालियों के लिए नहीं जीते. We live for Jesus. हम यीशु के लिए जीते हैं. I am faithful to my wife not because she's watching me. मैं अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य हूँ इसीलिए नहीं क्योंकि वो मुझे देख रही है. I'm faithful to her because of Jesus. मैं उसके प्रति विश्वास योग्य हूँ क्योंकि यीशु मसीह की वजह से. It changes everything. वो हर एक बात को बदल देता So है. when you have the epignosis of Jesus Christ, when you're pursuing the knowledge of Jesus Christ, what you have received in Christ, it will manifest. तो जब आप यीशु मसीह के एपिग्नोसिस में बढ़ते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो जो आपके पास यीशु मसीह में है वो प्रकट होता है. That escape manifests. वो छुटकारा प्रकट होता है. That dominion or over immorality, it manifests. वो अनैतिकता के ऊपर जो प्रभुत्व है वो प्रकट होता है. In Christ, you're supposed to live a sin-free life. आपको मसीह में पाप मुक्त जीवन जीना है. Amen. आमीन. Because that escape is already in you. क्योंकि वो छुटकारा पहले से आपके अंदर That है. dominion is already in you. प्रभुता पहले से आपके अंदर है. Now, if you try to fight the sin, it will never come out. अगर आप पाप से लड़ने का प्रयास करेंगे तो कभी बाहर नहीं आएगा. If you pursue Jesus पर अगर आप यीशु का अनुसरण करें and you study Him और आप उसका अध्ययन करें and you look at Him from all 4 directions, और आप उसको चारों दिशाओं से देखें, that escape will come out. वो छुटकारा बाहर आएगा. और ये दिखावा नहीं है.
Many believers all around the world, they just show और बहुत सारे विश्वासी पूरे विश्व भर में सिर्फ दिखाते हैं, because they're living for people. क्योंकि लोगों के लिए जीते हैं। It's not a show. ये दिखावटा नहीं है, It's a genuine thing. ये असली चीज है। Jesus has genuinely changed me. यीशु ने असली रूप से मुझे बदला है। It's not something I am showing to get somebody's favor. No, Jesus has actually changed my life. नहीं, ये मैं इसके लिए नहीं कर रहा था कि मुझे किसी की ओर से कृपा मिले या कुछ पहचान मिले। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु ने मुझे सचमुच बदला है। The epignosis of Jesus brings out the escape and the dominion that you have received in Christ. यीशु मसीह का एपिग्नोसिस आपको जो छुटकारा और जो आपको जो प्रभुत्व आपको मिला है वो प्रकट करता है। Okay, let's read this 2 Peter 1:3. इसको ध्यान से देखिए। We are learning about the results of epignosis. हम एपिग्नोसिस के परिणामों को देख रहे हैं और उसका वचन देखेंगे। दूसरा पतरस 1:3। According as his divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness through the epignosis of him that called us to glory and virtue. क्योंकि उसी के ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें उसकी एपिग्नोसिस के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Verse 4. वचन 4। इसको ध्यान से देखिए। Whereby are given unto us exceedingly great and precious promises, that through the word or through the epignosis of Jesus, you will be a partaker of the divine nature that's in your spirit, which is your escape and your dominion over the moral corruption and pollution that's in the world through lust. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इन वचन के द्वारा उसके एपिग्नोसिस के द्वारा तुम उस सड़ाहट से, जो नैतिक सड़ाहट है, उससे छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो। Divine nature is escape. जो आपका दिव्य स्वभाव है वो छुटकारा है। We know that oil and water don't mix. हम जानते हैं कि तेल और पानी साथ में मिलता नहीं। Divine nature, that nature is your escape. That nature is your dominion. जो दिव्य स्वभाव है, जो ईश्वरीय स्वभाव है, वो आपका छुटकारा है। Yes. वो आपका प्रभुता है। That nature is your escape. वो स्वभाव आपका छुटकारा है। That nature is your dominion. वो स्वभाव आपकी प्रभुता है। And then he says that nature which is your escape, it comes out through the epignosis of Jesus Christ. और वो कहता है जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारा छुटकारा प्रभुता है, वो यीशु मसीह की एपिग्नोसिस के द्वारा बाहर आता है। I heard this in the spirit. मैंने ये अपनी आत्मा में सुना। Divine nature is your escape. दिव्य स्वभाव आपका छुटकारा है। Your escape is not a location. आपका छुटकारा एक जगह नहीं है। Your escape is not association. आपका छुटकारा आपकी सहभागिता नहीं है। Your escape is nature. आपका Is divine nature. आपका छुटकारा वो ईश्वरीय स्वभाव है। तो जब प्रभु ने आपको ईश्वरीय स्वभाव दिया, आप छुड़ा दिए गए। Amen. Amen. So don't go for छुटकारा, man. Where are you going? तो छुटकारा के लिए मत जाइए आप। तोड़ो इसको, तोड़ो। क्या तोड़ो? यीशु तोड़ नहीं पाया, और कौन तोड़ेगा? तोड़ो, टूटा नहीं, थोड़ा साइड में है। तोड़ो इसको। See, that is why I told you we must take this teaching to all over India. इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें इन शिक्षा को पूरे भारत भर में लेकर जाना है। And the Holy Spirit will take it. और पवित्र आत्मा लेकर जाएगा। Recently my wife saw a vision. हाल ही में मेरी पत्नी ने एक दर्शन देखा And God told her, और प्रभु ने उसे कहा, all the major cities of India is open. इस भारत की सारी मुख्य सिटीज जो है, जो देश है, जो जगह है, वो आर्क के लिए खुल चुकी है। Hallelujah. Amen. Amen. So he says that nature is your escape. वो स्वभाव आपका छुटकारा है। So when he gave you the nature,
you have escaped. तो जब उसने आपको स्वभाव दिया आप छुड़ाए गए। Hallelujah. Amen. You know, it's like we had a snake nature, हमारे पास एक पाप का स्वभाव था, a सांप का. सांप का। So we had a snake nature. हमारे पास सांप का स्वभाव था, And so snake are subject to certain things. और सांप कुछ चीजों के लिए करता है, चीजों को करता है। But for example, the moment you got born again, that snake nature was converted to lion nature, and now lions are not subject to whatever snake is subject to. और जब आपका उस क्षण आया और आपका सांप वाला स्वभाव उन सिंह के स्वभाव की तरह हो गया, और अब वो सिंह जो है वो सांप जो चीजें करता है उन चीजों को नहीं करता, उन चीजों के वश में नहीं है। जो चीजों के वश में सांप हुआ करता था, आपका जब स्वभाव बदल गया, आप उन वश में अभी हो ही नहीं सकते क्योंकि आपका स्वभाव ही बदल गया। Amen. See, this will go all over India. और ये पूरे भारत भर में जाएगा। आप आएंगे ना मेरे साथ? Amen. All over India. पूरे भारत भर में 2015, 2015 में I'm sitting in Kolkata airport, मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे बैठा था, sitting in the plane, मैं उस प्लेन में बैठा था, looking out, मैं बाहर देख रहा था, and the Lord said, और प्रभु ने मुझसे कहा, "Are you ready for your jet?" क्या तुम अब तुम्हारे जेट के लिए तैयार हो? अभी जेट का टायर खरीदने का मेरे पास पैसा नहीं है। जेट का टायर इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स बिग। हमारा कार का टायर जैसा नहीं, सो बिग, आप बैठ के जा सकते हो उसमें। इट इज सो बिग। मैं सोच रहा हूँ लॉर्ड, एक टायर लेने का मेरे पास पैसा नहीं है, सेविंग्स निकालना पड़ेगा, एफडी निकालना पड़ेगा। सो आई एम थिंकिंग एंड आई सेड लॉर्ड, और मैंने सोचा और मैंने कहा प्रभु आई एम रेडी फॉर द जेट। मैं जेट के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो बोलेगा तो भी खर्चा वही देंगे। प्रेज गॉड। आप जब सेना में जब जाते हैं तो आपको वर्दी मिलता है, बंदूक मिलता है, सब सरकार उठाता है खर्चा। जब पिता परमेश्वर आपको कहीं पर, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई, सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स नॉट माय ड्रीम टू डू सो। ये मेरा सपना नहीं है कि मैं इन चीजों को करूं भाई और बहन। गॉड्स प्लान, ये परमेश्वर का योजना है, गॉड्स प्लान, परमेश्वर की योजना है। एंड इफ यू से यस, इट्स ऑल गोना हैपन। और अगर आप हाँ बोले तो सब होगा। बिकॉज वी वांट टू गो टू दिस डिफरेंट स्टेट्स, बट संडे आई वांट टू बी इन द आर्क। क्योंकि हम अलग अलग राष्ट्रों में जाना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं हर रविवार को आर्क में रहूं। There is no place like the ark. आर्क की तरह बेहतर कोई जगह है ही नहीं। So Sunday will be here. तो रविवार हम यहाँ होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Step by step we are going towards it. और कदम से कदम करके हम उस ओर जा रहे हैं। So through the that divine nature manifests through epignosis. और वो आपका दिव्य स्वभाव वो एपिग्नोसिस के द्वारा प्रकट होता है। See, all you're trying to do is don't try to come up, don't waste your time, don't try to defeat it, no, don't try to fight it, don't do wrestling with it, don't try to kick it, no, you are already above it. Just love Jesus, pursue Jesus, go after him, and in doing so that escape and that dominion will manifest. आप उससे लड़ने का प्रयास मत करो, उससे लात ना मारे, उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास ना करें, आप उसे यहां मत ढकले वहां मत ढकले, पर आप सिर्फ यीशु से प्रेम करें, उसको और जाने, उसके साथ चले और उसके पीछे चले, और ये करने में वो दिव्य स्वभाव आजाद होगा। One more verse. एक और एक वचन 2 Peter 2:20. दूसरा पतरस 2:20। Same thing the apostle Peter says, same thing. पतरस वही बात को फिर दोहरा रहा है। Very interesting. बहुत दिलचस्प है ये बात। If after they have escaped the moral pollutions of the world through the knowledge of Jesus, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार और की नाना प्रकार की नैतिक अशुद्धता से बच निकले। the first part I want you to see, there is the second verse. Through the epignosis of Jesus, that escape manifested, that nature manifested, where the moral pollution and corruption could not catch them anymore. और यीशु मसीह की एपिग्नोसिस के द्वारा वो दिव्य स्वभाव जो है वो प्रकट हुआ, ताकि जो नैतिक अशुद्धता है अभी उसको पकड़ ना सकी। One of the problems with those who struggle with sin, एक समस्या उनके साथ जो पाप के साथ संघर्ष करते हैं, they talk more about sin
and their weaknesses and less about Jesus Christ. वो पाप के बारे में जो उनकी कमजोरी है और क्या है उनके बारे में बहुत बात करते हैं और यीशु के बारे में कम बात करते हैं. He says you will escape the pollution through the epignosis of Jesus. और वो कहता है कि तुम यीशु मसीह की एपिग्नोसिस के द्वारा नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकलोगे. It's not beating the sin. ये पाप को मारने से नहीं होगा, It's not destroying the sin. ये पाप को नष्ट करने से नहीं It's होगा, not beating your body. ये अपने शरीर को मारने से नहीं होगा. It's just studying Jesus. वो सिर्फ यीशु को ध्यान देने में, उसमें जानने में होगा. In Nagpur, one pastor was saying, ऐसे कैसे अनुग्रह से समृद्धि आ सकता है? ऐसा ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा ऐसा कैसे आ सकता है? I came to know he was asking that question. How can grace just produce anything? और एक पासवान जो है नागपुर में कह रहे थे और मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने ऐसा पूछा कि ऐसा कैसे अनुग्रह से समृद्धि आ सकती है. There were certain people, snake had bitten them, कुछ लोग थे जिन्हें सांप काटा उनके पैर पर, and there was a snake. Moses made a bronze snake and put it on a pole. और मूसा ने एक तांबे का सांप बनाकर उसने उसे एक खंबे पर रख दिया. And he told the people, और उसने लोगों से कहा, if snake has bitten you, अगर सांप ने आपको काटा है, look at the snake. तुम उस तांबे, उस पीतल के सर्प की ओर देखो. As they looked at the snake, the poison was dematerialized. और जब वो उस सांप को देख रहे थे तो जो उनके अंदर का जो वो जहर था वो अभी कुछ किसी काम का नहीं रहा. It was taken out of the body. वो उनके शरीर से बाहर निकला. Just by looking, they were healed. सिर्फ देखने से वो चंगे हो गए. Somebody says, how can this be? कोई कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है? Anybody who is self-centered or self-glorifying person will have difficulty believing what comes by grace. क्योंकि जो स्वयं केंद्रित व्यक्ति है और जो खुद के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है उसे बहुत मुश्किल होगी ऐसे समृद्धि पर विश्वास करना जो अनुग्रह से आती है. Healing comes by grace. चंगाई अनुग्रह से आती है. Prosperity comes by grace. समृद्धि अनुग्रह से आती है. In our studying Him, हमारा उसे जानने में, in our studying Him, हमारा उस पे अध्ययन करने में, don't let anybody distract you. किसी भी व्यक्ति को आपको विचलित ना करने दे. When you come home, look at Him जब आप घर आए उसकी ओर देखें, and look at Him. उसको देखें. Don't matter what other people are doing. Jesus will take care of it. इससे फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह उसकी देखभाल कर They लेगा. will fix it. वो ठीक कर देगा. You look at आप Jesus यीशु को देखें, and you look at Him through the Word, आप वचन के द्वारा उसको देखें, and you look at Him through the teachings. आप उससे शिक्षाओं के द्वारा देखें. And in looking at Him, that divine nature manifests. और उसे देखने में वो दिव्य स्वभाव प्रकट होगा. How blessed we are. कितने आशीषित हम हैं. Just look at Him. सिर्फ उसे देखें. और आपने देखा होगा सबसे प्राथमिक तरीका शैतान का आपकी नजर को यीशु से हटाना, उसका सबसे बड़ा काम है. Amen. Amen. बिकॉज इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये मेरे पीछे पड़ा है, देखो ये. Very cunningly, he took your eyes away from Jesus. That's his agenda. बहुत चालाकी से उसने आपकी आंखों को यीशु मसीह से दूर लेकर गया है और यही उसका एजेंडा है. Okay, finally, come, Brother Abhishek, we are closing. This is my last line. और आखिर में ये हमारा लास्ट स्लाइड है. Oh, नहीं, पूरे लास्ट में चलेगा. Before this, the epignosis of Jesus. Yeah, this is the last one. इसको देखिए. And I want to tell you how it works. The epignosis of Jesus, if you pursue him, it will govern your inner life. अगर आप यीशु मसीह के एपिग्नोसिस का अनुसरण करेंगे तो आपके आंतरिक जीवन को शासित करेगा. He will affect your will. वो आपकी इच्छा पर प्रभाव डालेगा. He will impact your power to choose. You will choose what's best. वो आपकी चुनने की जो शक्ति है उसके ऊपर प्रभाव डालेगा और आप सही चीजों को चुनेंगे. He will affect your desires. वो आपकी चाहत पर प्रभाव डालेगा. आप उसके पीछे पीछे भागे brothers. He will affect what you want. आप उसके पीछे जाइए भाई और वो आप जो चाहते हैं आप उसके ऊपर उसका प्रभाव आएगा. Think about Paul. He says it's all fresh dung. अब पौलुस कहता है कि ये सब कूड़ा है. It's all dung, he says. वो कहता है कि ये सब कूड़ा है. Jesus affected his ambitions. यीशु मसीह ने उसकी महत्वाकांक्षाओं पे प्रभाव डाला. He affected
his values. उसने उसके मूल्य पर प्रभाव डाला, He affected his responses and his reactions. उसने उसकी प्रतिक्रियाओं के ऊपर प्रभाव डाला। See, this is how he works. ऐसा वो काम करता है। We are so much prideful about our name and this and that, and you pursue Jesus, he begins to operate in you. हम बहुत ज्यादा घमंडी थे हमारे नाम के बारे में, ये बार इसके बारे में, उसके बारे में, और हम उसके पीछे चलते हैं और वो हम में काम करता है। First you think, who will pray for the nations? I don't care about nations. I want my salary on time. पहले हम कहते थे कि कौन देशों के लिए प्रार्थना करेगा, मुझे बस मेरा तनख्वाह टाइम पे चाहिए। And then you study Jesus और अब फिर आप यीशु का अध्ययन करते हैं, and you look at him. आप उसको देखते हैं, धीरे धीरे you are so passionate about the nations of the world. और अब धीरे धीरे करके आप देशों के लिए बहुत ज्यादा जुनून से भर जाते हैं। You want to pray for the nations of the world आपको पूरे देशों के लिए प्रार्थना करनी है, because he is affecting your will. क्योंकि वो आपकी इच्छा पर प्रभाव डाल रहा है। You know, there are people who love to sin. कुछ लोग हैं जिन्हें पाप करना बहुत पसंद है, They're waiting for opportunities to sin. वो सिर्फ राह देखते हैं कि उन्हें कोई अवसर मिले कि वो पाप करें। Waiting for places where they can go and sin. वो ऐसी जगहों की राह देखते हैं जहाँ पे वो जाके पाप कर सके। But that individual, now he pursues Jesus. पर वो व्यक्ति अभी यीशु का अनुसरण करता है, And Jesus started affecting his desires. He doesn't want to sin anymore. और यीशु मसीह उसकी चाहत पर प्रभाव डालता है। अभी उसको पाप करना अच्छा नहीं लगता, He doesn't want to see those stupid things anymore. उससे अभी वो मूर्ख चीजें नहीं देखनी। He's a very angry man. बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था। And now is after Jesus, his response has changed. अभी वो यीशु के पीछे उसकी प्रतिक्रिया बदल गई। He changes you, your inner life. He changes you. आपका आंतरिक जीवन में बदलता है, And all you did, और आपने सिर्फ इतना किया, you said, I want to know you, Lord. आपने कहा खुदा मैं आपको जाना चाहता हूँ, I'm struggling. मैं यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ। ये बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, उसके शरीर में दर्द है, लहू बह रहा है, पैसा नहीं है, पारिवारिक लोग नहीं है, कठिन परिस्थिति में उन्होंने यीशु के पीछे जाने का निर्णय किया। अभी भी अगर आप पाप से संघर्ष कर रहे हैं या कुछ तकलीफ में हैं या आपके विचार शायद इतने बेहतर न हो, कुछ तकलीफ है, जो भी है, इस मौके में, इस परिस्थिति में आप यीशु के पीछे जाइए। वो चंगा होने के बाद यीशु के पीछे नहीं गई, उस दर्द में वो यीशु के पीछे गई। उस मेडिकल रिपोर्ट जब गलत था, वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ वो यीशु के पीछे गई। आप जो भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसके बीच में आप यीशु के पीछे जाइए, यीशु से प्रेम करिए, यीशु को ढूंढिए वचन में। जब आप आराधना करें, उसको देख कर करिए और उसका अनुसरण करते करते आपको छुटकारा मिलेगा नहीं, आपको प्रभुत्व मिलेगा नहीं, वो तो आपके पास है, मसीह में आपके पास है। उसका अनुसरण करने से जो आपके पास है वो बाहर फूट कर निकलेगा। It will come out, it will manifest, it will come out. Those desires will not affect you anymore. और वो चाहते आपके ऊपर अभी प्रभाव नहीं डालेगी। No matter how worldly your college friends or your company friends are, it won't affect you anymore. भले कितने भी सांसारिक आपके कॉलेज के दोस्त से आपके काम के दोस्त क्यों ना हो, I'm in love. मैं प्रेम में हूँ, I'm in love with Jesus. मैं यीशु के साथ प्रेम में हूँ, I'm so much in love with him. मैं उसके साथ इतना प्रेम में हूँ। What they are saying is their problem. वो जो कहते हैं वो उनकी समस्या है, What they are thinking is their problem. वो जो सोचते हैं वो उनकी समस्या है, What they are तhinking is their problem. और वो जो वो सोचते हैं वो उनकी समस्या है। Have you seen somebody in love? कुछ और दिखता ही नहीं उनको, और कुछ क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो प्रेम में, उसे कुछ और दिखता ही नहीं? कुछ ब्रदर्स हंस रहे हैं भैया। I can only see my wife. मैं सिर्फ मेरी पत्नी को देखता हूँ। किधर है? You know, when you are so much in love, जब आप बहुत ज्यादा प्रेम में होते हैं, so much in love, आप बहुत अधिक प्रेम में होते हैं, you're looking at this person called Jesus, आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, और आप सोच रहे, प्रभु क्या कर दिया आपने मेरे साथ। मेरा जन्म धन में हुआ है, जन्म से मैं राजा हूं, जन्म से मैं वारिस हूं, जन्म से मेरे पास मीरास है। प्रभु क्या कर दिया आपने मेरे लिए। What have you done? Praise God. आइए सब खड़े हो जाएं। Let's